Hey guys, welcome back to the channel. Stay tuned with Pahadi Brothers and Aman Rawat. Let's move on to the book. हम लोग कहाँ पे थे? कहाँ पहुँचे हम लोग? पेज नंबर 171 हम कंप्लीट कर चुके थे. पेज नंबर 172, 17 हम शुरू कर चुके थे. एंड हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस ये हम लोग पढ़ चुके थे. थोड़ा सा शुरू किया था, देन उसके बाद हम लोग सो गए थे. दे आर एंग्री एट गॉड एंड दे बिलीव ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरी. ये भी हम सारी चीज़ें पढ़ चुके थे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो भी उनके साथ प्रॉब्लम होती है भगवान के नाम पर डाल देते हैं. एज लॉन्ग एज पीपल. शोभा शाह, हेलो, हाउ आर यू? शोभा जी कैसे हैं आप? As long as people entertain such negative concepts about God, they will experience the automatic negative reactions. ये हो चुका है. Life always forgives you. Life हमें हमेशा forgive कर देती है. ये भी हम पढ़ चुके हैं. And I hope हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं यहाँ पे. You have a greater reason to understanding now. Forgiveness is forgive yourself. ये भी हो चुका है. A murderer learned to forgive himself. हो चुका है. Criticism cannot hurt without your consent. A school teacher told me that one of her associates criticized speech she had given. ये भी हो चुका है. How to become compassionate. यहाँ से देखते हैं. Suppose none of the things mentioned in the letter had been true of the teacher. The letter would have been realized that her class material had upset the prejudice, superstitions and narrow sectarian belief of the writers. Hello Fresh Attire. Hello Shubha. Hello Noddy. How are you? Welcome back. क्या बात है, अलग अलग नई नई आइडिया से आ रहे हैं हमारे प्यारे दोस्त. अच्छा लगा आपको यहाँ पे देखकर. एक सेकेंड बस, आपके पास हम भी आ जाए. चलो आगे बढ़ते हैं. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. अब ये 2 घंटे चले, 3 घंटे चले, कोई नहीं, आज ये बुक ख़त्म करेंगे ताकि हम लोग नई बुक पढ़ सकें. एंड दैट a psychological ill person was simply pouring forth her resentment because a psychological boil had been hurt. To understand this fact is to compassionate. The next logical step would be to pray for the other person's peace, harmony and understanding. You cannot be hurt when you know that you are the master of your own thoughts, reactions and emotions. मतलब कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता जब तक आपने समझ रखा है कि आप ही अपने थॉट्स के लिए ज़िम्मेदार हो, है ना. कोई आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकता, कोई आपके इमोशंस के साथ नहीं खेल सकता, कोई आपके रिएक्शंस को जज नहीं कर सकता जब तक आप अपने थॉट्स के मालिक हो. होता है ना कि आपने किसी ने बोल दिया भाई ऐसा हो जाएगा, छोड़ दे, ये वो कर दे, तो दूसरों की बात नहीं सुननी. अपने काम पे फोकस करना है, अपनी बातों पे, अपने थॉट्स पे फोकस करना है और हमेशा अच्छा सोचना है. देखो चीज़ें नेगेटिव होती हैं बट उसको भी पॉजिटिवली लेना है. इमोशंस फॉलो थॉट्स एंड यू हैव द पावर टू रिजेक्ट ऑल थॉट्स विच मे डिस्टर्ब यू और अपसेट यू. लेफ्ट एट द अल्टर. Some years ago I visited a church to perform a marriage. Some years ago I visited a church to perform a marriage ceremony. The young man did not appear, and at the end of the 2 hours, the bride-to-be shed a few tears, and then said to me, I prayed for divine guidance. This might be the answer, for he never faileth. That was her reaction, faith in God and all things good. She had no bitterness in her heart because she said, it must not have been right action because my prayer was right action for both of us. Someone else having a similar experience would have gone into a tantrum, have had an emotional fit, required sedation, and perhaps needed hospitalization. Tune in with the infinite intelligence within your subconscious depth, trusting the answer in the same way that you trusted your mother when she held you in her arms. This is how you can acquire poise and mental and emotional health. मतलब जितना भरोसा आप मॉम पे करते हो अपनी, उतना भरोसा अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मतलब उसकी चीज़ों को मानने में बिलीव करोगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं. अगर आपने सोचा है कि हाँ मैं नंबर 1 एथलीट बन जाऊँ या नंबर 1
स्कूल टॉपर बन जाऊँ, या कुछ भी बनना चाहते हो, जो बनना चाहते हो वो आपने सोच लिया तो आप बन सकते हो। और जितना भरोसा आप अपनी मॉम पे करते हो उतना ही आपको अपने दिमाग पे करना है। बस ऐसा ये कह रहे हैं ऑथर जी। इट इज़ रॉन्ग टू मैरी, सेक्स इज़ एवल एंड आई एम एवल। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। सम टाइम अगो आई टॉक टू अ यंग लेडी एज 22। एक यंग लेडी से इनने बात की 22 ईयर्स की। शी वॉज टॉट दैट इट वॉज अ सिन टू डांस। उस लेडी को सिखाया गया कि ये एक अपराध है डांस करना। टू प्ले कार्ड्स, टू स्विम एंड टू गो आउट विद मैन, ये सारी चीज़ें पाप हैं। मतलब कार्ड्स खेलना, स्विम करना, लड़कों के साथ बाहर आउटिंग पे जाना, ये सब अपराध है। ऐसा उस बच्ची को सिखाया गया। 22 साल की एज थी उस लड़की की। शी वॉज थ्रेटन्ड बाय हर मदर हु टोल्ड हर शी वुड बर्न इटर्नली इन हेल फायर इफ शी डिसओबेड हर विल एंड हर रिलीजियस टीचिंग। और उसकी मॉम ने उसे ये कह के डराया कि आप लोग, मतलब तुम हेल फायर में जलोगी अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना और अपने रिलीजियस चीज़ों को फॉलो नहीं किया। द गर्ल वोर अ ब्लैक ड्रेस एंड अ ब्लैक स्टॉकिंग। उस लड़की ने पूरी ब्लैक ड्रेस पहनी, ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनी। शी वोर नो रॉक, लिपस्टिक और एनी फॉर्म ऑफ मेकअप। उसने कभी कोई लिपस्टिक, कोई मेकअप नहीं लगाया। बिकॉज हर मदर सेड दैट दीज थिंग्स वर सिंफुल। उसकी मॉम ने बोला क्योंकि ये सारी चीज़ें सिंफुल है, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो ये एक अपराध है। उनके रिलीजन में लिखा है। हर मदर टोल्ड हर दैट ऑल मैन वर इवल। उसकी मॉम ने बताया कि हर आदमी इवल है। एंड दैट सेक्स वॉज द डेविल एंड सिंपली डिबॉलिक डिबॉर्चरी। दिस गर्ल हैड टू लर्न हाउ टू फॉरगिव हर सेल्फ। इस लड़की को सीखना था कैसे फॉरगिव किया जाए अपने आप को। एज शी वॉज फुल ऑफ गिल्ट, वो जिंदगी भर गिल्ट में रही। टू फॉरगिव मीन्स टू गिव फॉर। She had to give up all these false beliefs for the truth of life and a new estimate for herself. When she went out with young men in the office where she worked, she had a deep sense of guilt and thought that God would punish her. Several eligible young men proposed to her, but she said to me, "It is wrong to marry. Sex is evil and I am evil." दिस वॉज हर कॉन्शियस और अर्ली कंडीशनिंग स्पीकिंग। ये उसकी पहले जो वो समझती थी वो ये बार बार रिपीट करती रही कि इट इज़ रॉन्ग टू मैरी, सेक्स इज़ ईवल एंड आई एम ईवल। ठीक है, तो उसके दिमाग में ही फिट कर दिया था उसकी मॉम ने। शी केम टू मी वंस वीकली फॉर अबाउट 10 वीक्स। ये ऑथर के पास आई वंस अ वीक और 10 वीक तक आई। एंड आई थॉट हर सेल्फ वर्किंग ऑन द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एज सेट फॉर्थ इन दिस बुक। This young girl gradually came to see that she had been completely brainwashed, mesmerized, and conditioned by ignorant, superstitious, bigoted, and frustrated mother. मतलब उस लड़की का ब्रेन वॉश कर दिया था उसकी मॉम ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियन थी, बाइगॉट थी, फ्रस्ट्रेटेड थी। अब ये भी तो सोचो ना कि वो, मतलब जो बच्ची है वो आई कैसे, वो भी तो आई है ना बायोलॉजिकल प्रोसेस से। तो उसकी मॉम ने बताया कि ये सारी इवल है, ये सारी चीज़ें हैं, पर कहीं ना कहीं वो बेटी भी तो वहीं से आई है। तो एक तरीके से ब्रेन वॉश किया गया। हम कुछ मिनट के मेहमान हैं। हेलो प्रीतिशा प्रियदर्शनी दास, आप आए तो बाहर आई। धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीम। आगे बढ़ते हैं। At my suggestion, she dressed up and had her hair attended to. She took lessons in dancing form from a man, and she also took driving lessons. She learned to swim, play cards, and had a number of dates. She began to love she prayed for a divine companion by claiming that infinite spirit would attract to her a man who harmonized with her thoroughly. Eventually, with came to pass as she left my office one evening, there was a man waiting to see me, and I casually introduced them. They are now married and harmonize with each other perfectly. Forgiveness is necessary for healing, and when ye stands praying, forgive if ye have aught against any. Forgiveness of others is essential to mental peace and radiant health. You must forgive everyone who has ever hurt you if you want perfect health and happiness. Forgive yourself by getting your thoughts in harmony with divine law and order. You cannot really forgive yourself completely until you have forgiven
others first. मतलब आप अपने आप को तब तक माफ़ नहीं कर पाओगे जब तक आप दूसरों को माफ़ करना नहीं सीखोगे. To refuse to forgive yourself is nothing more than less than spiritual pride and ignorance. आज यहाँ चिकन पकौड़ा बना है 2nd फ्लोर पे चिकन मंचूरियन. क्या बात है. तो कैसे हैं आप लोग. आज मामा मामी ने नया फ़ोन लिया है. नहीं है फ़ोन लिया नहीं है 11 बजे ले जाते हैं. हम कुछ मिनट के मेहमान हैं. क्या बात. तो कैसे हैं आप लोग. आज मामा मामी ने न्यू फ़ोन लिया नहीं है 11 बजे ले जाते हैं. क्या समझा नहीं मैं. थोड़ा एलैबोरेट कीजिए. It is psychomatic field of medicine today. It is being constantly stressed that resentment, condemnations of others, remorse, and hostility are behind a host of maladies ranging from arthritis and cardiac disease. They point out that these sick people who were hurt, mistreated, deceived, or injured were full of resentment and hatred for those who hurt them. This caused inflamed and festering wounds in their subconscious mind. There is only one remedy. They have to cut out and discard their hurts, and the one and only sure way is by forgiveness. Forgiveness is love in action. The essential ingredient in the art of forgiveness is the willing to forgive. If you sincerely desire to forgive the others, you are 51% over the hurdle. I feel sure you know that to forgive the other does not necessarily mean that you like him or want to associate with him. You cannot be compelled to like someone, neither can a government legislate goodwill, love, peace, or tolerance. It is quite impossible to like people because someone in Washington issues an edict to that effect. We have, however, loved people without liking them. हम लोग क्या करते हैं. लोगों को प्यार करते हैं विदाउट लाइकिंग देम. द बाइबल सेज लव ये वन अनदर. बाइबल कहता है कि दिस वन एनीवन कैन डू हु रियली वांट्स टू डू इट. लव मीन्स दैट यू विश फॉर द अदर हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, जॉय एंड ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ. देयर इज ओनली वन प्री रिक्विसाइट एंड दैट इज सिंसियरिटी. You are not being magnanimous when you forgive. You are really being selfish because what you wish for the other, you are actually wishing for yourself. The reason is that you are thinking it, you are feeling it. As you think and feel, so are you. Could anything be simpler than that? क्या बात है. जय महाकाल. सब जय महाकाल करें. हेलो अनीता जी, आप कैसे हैं. मामा मामी के घर पर हो. यस यस यस. आगे बढ़ते हैं. टेक्निक ऑफ फॉरगिवनेस. कैसे मतलब लोगों को फॉरगिव किया जाए, क्या टेक्निक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. द फॉलोइंग इज अ सिंपल मेथड विच वर्क्स वंडर इन योर लाइफ एज यू प्रैक्टिस इट. इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, एक बहुत सिंपल सा मेथड है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. क्वाइट योर माइंड, रिलैक्स एंड लेट गो. अपने दिमाग को शांत करो, ठीक है, रिलैक्स करो एंड लेट गो कर दो, चीज़ों को जाने दो. थिंक ऑफ गॉड एंड हिज लव फॉर यू and then affirm, I fully and freely forgive. Mention the name of the offender. तो देखो क्या होता है. अपने माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है, और लेट गो कर दो. थिंक ऑफ गॉड एंड हिज लव फॉर यू एंड देन अफर्म, आई फुली एंड फ्रीली फॉरगिव. मेंशन द नेम ऑफ द ऑफेंडर. आप अपने दिमाग को शांत करके बोल दो कि भाई मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ, उसका नाम लेकर, ठीक है. अब क्या होता है, रिलीज हिम मेंटली एंड स्पिरिचुअली. आप उसे माफ़ कर दो. I completely forgive everything connected with the matter in question. I am free and she is free. It is a marvelous feeling. It is my day of journal amnesty. I release anybody and everybody who has ever hurt me. And I wish for each and every health, happiness, peace, and all blessings of life. I do this freely, joyously, and lovingly. And whenever I think of the person or person who hurt me, I say, I have released you and all the blessings of life are yours. I am free and you are free. It is wonderful. ऐसा करना है, ठीक है. डिनर करने जा रही हूँ मैं. गॉड नाइट अनिता जी, अमन जी. गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय.
हम लोग नहीं जा रहे, प्रीतिशा जी जा रही है, आप लोग बाय बोल सकते हो, ठीक है। द ग्रेट सीक्रेट ऑफ ट्रू फॉरगिवनेस इज दैट वंस यू हैव फॉरगिवन द पर्सन इट इज़ अननेसेसरी टू रिपीट द प्रेयर, ठीक है। जब आपने उसे माफ़ कर दिया है तो सबसे अच्छी बात है कि उसे आपने बहुत अच्छा काम किया। Whenever the person comes to your mind or the particular hurt happens to enter your mind, wish the delinquent well and say peace be to you। मतलब कभी भी आपको उस बंदे के बारे में याद आए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको अच्छी बातें सोचनी है, भगवान के बारे में सोचना है। डू दिस एज द ऑफन एज the thought enters your mind, you will find that after a few days and thoughts of the person or experience will return less and less often until it fades into nothingness। सिंपल सी बात वो ये कह रहा है कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, किसी ने भी आपका मजाक उड़ाया है, कुछ भी किया है, तो उसको अपने दिमाग में मतलब ये मत बैठाओ कि उसने मेरा मजाक उड़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। सिंपल फॉरगिव करो और छोड़ दो उसको। जितना आप उसे मतलब इग्नोर करोगे ना चीज़ों को, इन द सेंस ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप उसे माफ़ करो और उस चीज़ को भूल जाओ, उसके पास पावर ही नहीं रह जाएगी। जो उसने बोला था ना आपको, वो उसके बाद में पावर ही नहीं रह जाएगी। गाइस स्टे ट्यून टू अमन रावत चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक्स अलॉट। मेरी कज़न आई, उसका नाम दिशा है, सब्सक्राइब बोल देना, सब्सक्राइब दिशा का फ़ोन लेकर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एसिड टेस्ट फॉर फॉरगिवनेस। अब एसिड टेस्ट की बात हो रही है। देयर इज़ एन एसिड टेस्ट फॉर गोल्ड, there is also an acid test for forgiveness. If I should tell you something wonderful about someone who has wronged you, cheated you, or defrauded you, you sizzled at hearing the good news about this person. The root of hatred would still be in your subconscious mind, playing havoc with you. Let us suppose you had a painful abscess on your jaw a year ago and you told me about it. I would casually ask you if you had any pain now. You would automatically say, of course not, I have a memory of it but no pain. That is the whole story. You may have a memory of the incident but no sting or hurt anymore। मतलब आपको कोई चोट लगी हो पैर में ना, जिसका निशान हो, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई उस चोट में दर्द है, तो आप कहोगे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर अब वो आपको इंसिडेंट याद होगा, पर उसके पास पावर नहीं रह गई है। सो this is the acid test and you must meet it psychologically and spiritually. Otherwise you are simply deceiving yourself and not practicing the true art of forgiveness। तो इसको प्रैक्टिस करो, अदरवाइज आप ट्रू आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस को समझ नहीं पाओगे। टू अंडरस्टैंड ऑल इज टू फॉरगिव ऑल। सबको समझने के लिए सबको माफ़ करना ज़रूरी है। दिशा को थोड़ा सा गिटार सुना दो, फ़ोन अभी ले जाएंगे, बाय फेंक रहा था। दिशा को थोड़ा गिटार, ओके ओके, दिशा को गिटार सुनना है। आई गेस ट्यून नहीं होगा गिटार। दिशा को बता देना गिटार इज नॉट ट्यून राइट नाउ। गिटार, पियानो, ये सारी चीज़ें अच्छी है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक तो आना चाहिए, मतलब ऐसा मुझे लगता है। मतलब थोड़ा सा आप इंजॉय करने के लिए ये स्किल सीख सकते हो। मुझे तो भाई 10th क्लास में जोश आया था, ठीक है। तो एक लास्ट गाना बजा के चलते हैं।
कभी सुनना YouTube पे नया चैनल बना के उस पर ट्यूटोरियल्स अपलोड करने की सोची है। करो यार, टाइम मतलब इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मैं तो चाहता हूँ जल्दी से शुरू करो, मज़ा आएगा। लोगों को पियानो के बारे में बताओ, फील आएगा। ओके, व्हेन मैन अंडरस्टैंड द क्रिएटिव लॉ ऑफ हिज ओन माइंड, जब इंसान अपने दिमाग का जो प्यारा सा लॉ है उसे समझ लेता है तो क्या होता है? ही स्टॉप टू ब्लेम अदर पीपल एंड कंडीशन फॉर मेकिंग द मैरिंग इन हिज लाइफ। तो क्या होता है जब वो दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देता है? अगर आपने अपने दिमाग का लॉ समझ लिया ना, कैसे काम करता है, जो आप बोलते हो वो सारी चीज़ें आप पे ही आती हैं। हम बोलते हैं ना कि यार कहीं मैं स्कूटी चला रही हूँ और देखना मैं कहीं गिर ना जाऊँ, पहली बार स्कूटी चला रही हूँ गिर ना जाऊँ, और गिर जाते हैं। सोचते हैं गाड़ी चला रहा हूँ पहली बार, बस ठुक ना जाए गाड़ी, ठुक ना जाए यार बस, और गाड़ी ठुक जाती है। तो उस चीज़ को एंटरटेन मत करो दिमाग में, बस फ्री, आज तो मैं गाड़ी सीखूंगी, आज तो मैं गाड़ी सीखूंगी, मैं गाड़ी सीख गई हूँ, ऐसा सोचना है। और धीरे धीरे जो इंस्ट्रक्टर बता रहा है उस चीज़ पे फोकस करनी है। ही नोज दैट हिज ओन थाट्स एंड फीलिंग क्रिएट हिज आइडेंटिटी। जो आपके थाट्स हैं और आपकी फीलिंग्स हैं वही डेस्टिनी बनाते हैं। Furthermore, he is aware that externals are not the cause and conditioner of his life and his experiences. To think that others can mar your happiness, that you are the football of a cruel fate, that you must oppose and fight others for a living, all these and other like them are untenable. When you understand that thoughts are things, the Bible says the same thing. For a man thinketh in his heart, so is he. तो समझ लो, सिंपल सी बात यही कह रहा है कि आप एक फुटबॉल नहीं हो जो कोई भगवान और लोग आपको बॉल की तरह इधर से उधर पास कर रहे हैं। ठीक है, जो हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो आप सोचते हो वही होता है, ऐसा लिखा हुआ है। और इसका एग्जैक्ट एग्जांपल मेरे साथ तो 2 चीज़ें हो चुकी है। मैंने बिलीव किया था और वो मेरे को मिल चुका है। मैंने एक हैंड वाले बोले थे ना, ग्लव्स खो गए हैं, मिलेगा तो देखी जाएगी, और वो चीज़ इतनी जल्दी हो गई। मैंने उसे बोला कि मिल जाएगा और वो मिल गया इतनी जल्दी, विदिन 2 वीक्स के अंदर अंदर मिल गया मुझे। हाँ, कल शुरू कर दूंगा। दिशा ने कहा बहुत अच्छा लगा उसको गिटार, उसने सब्सक्राइब कर दिया, पेरेंट्स के फ़ोन से भी कर देगी। क्या बात है, थैंक यू दिशा, थैंक यू। आर्ट विद ईवा इज़ हेयर ऑन द स्ट्रीम। हेलो आर्ट विद ईवा, कैसे हैं आप? काफ़ी टाइम बाद। वेलकम बैक टू द स्ट्रीम एंड आई एम मेकिंग योर मॉडरेटर। दिशा ने कहा ओके, हेलो ईवा। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे किताब ख़त्म हो गई? नहीं, अभी तो 17 चैप्टर ख़त्म हुआ है। मैं खुश हो गई किताब ख़त्म हो गई। तो आप लोगों को बता दूं, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। पहले मुझे बता देना, दिस वन थिंक एंड ग्रो रिच, नेक्स्ट बुक थिंक एंड ग्रो रिच, ये वाली बुक, या दिस वन द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ, ठीक है। तो ये वाली मार्क मैनसन की बुक, ये भी काफ़ी अच्छी, ये शायद मोटिवेशनल बुक है, तो ये बताना। और द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसेल, इन तीनों बुक्स में से कौन सी पढ़नी है? और अगर आपको रीडिंग हैबिट बढ़ानी है तो वो बुक पढ़ो जो आपको पसंद है, इन द सेंस जैसे मोटिवेशनल बुक्स पसंद है, या फिर आपको साइंस एंड फिक्शंस पसंद है, या फिर लव स्टोरी पसंद है, तो स्टार्ट विद दैट बुक्स। मैं जो बता रहा हूँ उससे मत करो, जो आपको पसंद आ रही है उससे स्टार्ट करो। आपको भी देखना रीडिंग हैबिट बढ़ जाएगी और मज़ा आएगा। चलो चैप्टर नंबर 17 जिसने छोड़ दिया था उसके बारे में हम एक बार फिर से बता देते हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस, चैप्टर 17 की समरी हम देने वाले हैं, तो सुन लीजिए। समरी ऑफ योर एड्स टू फॉरगिवनेस, गॉड और लाइफ इज़ नो रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन। ठीक है, भगवान, लाइफ इज़ नो रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन, लाइफ प्लेज नो फेवरेट्स, लाइफ का कोई फेवरेट नहीं है। लाइफ और गॉड सीम्स टू फेवर यू when you align yourself with the principle of harmony, health, joy and peace। तो भगवान और लाइफ आपकी कब मदद करेंगे? जब आप अपने को अलाइन करोगे हार्मनी, हेल्थ, जॉय और पीस के साथ। द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक पढ़ो, अगली बुक। ओके, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस इज ऑल्सो नाइस। हाँ ठीक है,
मेरे हिसाब से अब हम पैसा कमाने वाली कोई बुक पढ़ें। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या कह रहे हो? मैं सोच रहा हूँ ये वाली पढ़ने का। दिस इज़ द बिगेस्ट बुक, मतलब 70 साल से नंबर 1 रही है। देखो इसका थर्ड पढ़ो, बेस्ट सेलर बुक है। 70 ईयर से ये बेस्ट सेलर है। तो अगर आप इसे पढ़ लोगे तो बहुत, मतलब आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। मैंने सुना है कि बोरिंग है, बट इट्स अ वेरी गुड बुक। इससे काफ़ी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ग्रैस्प की है और अपनी लाइफ में इसको जैसे जैसे इन लोगों ने इसे पढ़ा है, ज्ञान लिया है, तो बहुत आगे तक गए हैं। तो आप चाहते हो कि मैं थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ूँ तो मुझे बताना। बाकी ये 2 बुक्स भी मैं पढ़ सकता हूँ, पहले कौन सी पढ़ूँ ये मुझे एग्जैक्टली बताना, ठीक है? तो मैं पोल दे दूँगा आज या कल सुबह तक, तो आप उस पोल पे क्लिक कर देना, तो जो ज़्यादा होगा मैं उसी को पढ़ूँगा, ठीक है? द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक पढ़ो, अगली बुक। ओके, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस इज ऑल्सो नाइस बुक। दिशा आपकी गिटार की बहुत तारीफ़ कर रही है। ओके, अभी फिर बजाना है क्या दिशा के लिए? चलो इसकी समरी से पहले इम्प्रेस हो गई बच्ची, थोड़ा और इम्प्रेस कर देते हैं। क्या पता अगर हमने दिशा को इम्प्रेस कर दिया तो 3-4 सब्सक्राइबर और गेन हो जाए, है ना? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। तो एक थोड़ा सा एक पंक्ति बजा देते हैं। चलो आप बुक पढ़ लेते हैं, वरना ये बुक ख़त्म नहीं होने वाली और फिर जय महाकाल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे 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 पेंसिल, ठीक है? तो लाइफ और गॉड भी आपकी तभी मदद करेंगे जब आप प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, हेल्थ, जॉय एंड पीस, अगर ये चारों चीज़ों को फॉलो करोगे, ठीक है? हेल्थ पर ध्यान दो, अपनी खुशी पर ध्यान दो, क्या करना पसंद है उस पर ध्यान दो, अपने दिमाग को ठंडा रखना सीखो। गॉड और लाइफ नेवर सेंड डिजीज, सिकनेस, एक्सीडेंट और सफरिंग। कभी भी भगवान और लाइफ नहीं सेंड करती कोई बीमारी, सिकनेस या एक्सीडेंट या सफरिंग। वो कौन करता है? हमारा खुद का दिमाग। वी ब्रिंग थिंग्स on ourselves by our own negative destructive thinking based upon the law as we sow so shall we reap। तो देखो एक्सीडेंट, सिकनेस, डिजीज, सफरिंग, ये सब हम अपने नेगेटिव थॉट से लाते हैं अपनी ज़िंदगी में। थर्ड पॉइंट, योर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। इफ यू रियली बिलीव इन गॉड ऑफ लव, योर सबकॉन्शियस माइंड विल रिस्पॉन्ड इन काउंटलेस ब्लेसिंग टू यू। बिलीव इन अ गॉड ऑफ लव। हमेशा भगवान, प्यार के भगवान पे विश्वास रखो। योर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। भगवान का कॉन्सेप्ट आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। इफ़ यू रियली बिलीव इन अ गॉड ऑफ लव, अगर आप प्यार के देवता पे भरोसा करते हो, मतलब भगवान पे भरोसा करते हो, भगवान के प्यार पे भरोसा करते हो, योर सबकॉन्शियस माइंड विल रिस्पॉन्ड इन काउंटलेस ब्लेसिंग टू यू। तो आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काउंटलेस ब्लेसिंग देगा आपको। बिलीव इन गॉड ऑफ लव, ठीक है? दिशा द क्वीन ऑफ हिज वर्ल्ड। यहाँ दिशा पिघल गई। हाँ पढ़ लो बुक। आगे बढ़ते हैं। लाइफ और गॉड होल्ड्स नो ग्रज अगेंस्ट यू। लाइफ नेवर कंडेम्स यू, ठीक है? कभी भी कोई ग्रजेस नहीं है लाइफ और भगवान को आपसे, कोई आपसी रंजिश नहीं है। लाइफ हील्स अ सीवियर कट ऑन योर हैंड। हमेशा याद रखना, लाइफ आपने देखा है, आपकी जो लाइफ है, आप अगर अपने हाथ को काट दो तो वो अपने आप हील करेगी। आपने गलती की, अपने अपने हाथ की हड्डी तोड़ दी तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। तो लाइफ आपको डिसओबे नहीं कर रही। आपकी गलती की वजह से आपका हाथ टूटा या कुछ भी आपने काम किया, कुछ सोचा कि यार मैं गिर गया मेरा हाथ टूट जाएगा, कभी सोचा हो तो वो भी हो जाता है ना?
तो वो आपकी सोच है. अब योर गिल्ट कॉम्प्लेक्स इज द फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड लाइफ. गॉड और लाइफ डज नॉट पनिश यू और जज यू. गॉड और लाइफ कभी आपको जज और पनिश नहीं करते. यू डू दिस टू योर सेल्फ बाय योर फॉल्स बिलीव, नेगेटिव थिंकिंग एंड सेल्फ कंडेमनेशन. जो ये सब हम करते हैं ना, फॉल्स बिलीव, नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ कंडेमिनेशन, इसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है. सिक्स्थ पॉइंट, गॉड और लाइफ डज नॉट कंडेम और पनिश यू. द फोर्सेज ऑफ नेचर आर नॉट इविल. द इफेक्ट ऑफ देयर यूज डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज द पावर विद इन यू. ठीक है, तो वो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं देती है. गॉड और लाइफ कोई हमें पनिश नहीं कर रहा है, बट हमारे अंदर कुछ इविल फोर्सेज हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करने की बजाय उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं. यू कैन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू किल समवन और लाइट द हाउस. आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हो किसी की जान लेने में, या फिर अपने घर में रोशनी लाने के लिए. यू कैन यूज़ वाटर टू ड्राउन अ चाइल्ड और क्वेंच हिज थर्स्ट. या तो आप पानी का इस्तेमाल बच्चे को मारने के लिए कर सकते हो, या फिर उसकी प्यास बुझाने के लिए कर सकते हो. गुड एंड इविल कम राइट बैक टू द थॉट एंड पर्पस इन मैंस ओन माइंड. तो गुड और इविल, ये जो चीज़ें होती हैं वो हमारे दिमाग के अंदर होती है. हमें क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी कोई नहीं बताता. हमारे दिमाग में जो थॉट आते हैं हम वैसा ही करते हैं, है ना. आपके हाथ में चाकू दे दूं तो आप कभी कभी सोचते, गुस्से में होगे तो क्या सोचोगे, इससे तो मैं ना अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दूंगा. और अगर आपका दिमाग बहुत पीसफुल हो गए तो आप बोलोगे यार आज तो खरबूजा काट के खाएंगे, है ना. अच्छा अमन भाई आप बुक ख़त्म करो, हम जा रहे हैं सोने. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. आई विश कि आज आप नहीं जाते, आज आप हमारे साथ रुक जाते तो मज़ा आ जाता. चलो गुड नाइट. आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलेंगे. आप गुड नाइट. थैंक यू. जहाँ जा रहे हो सब्सक्राइब. ठीक है. और मैं 6 बजे उठा हूँ इसलिए जल्दी सोता हूँ. शुभ रात्रि. हाँ मैं भी आज 5:45 पे उठा था. सुबह गए थे आज हम लोग, दिन में नहीं गए थे रनिंग करने के लिए. मज़ा आ गया, सुबह ठीक था. आगे बढ़ते हैं. गॉड और लाइफ नेवर पनिशेस. Man punishes himself by his false concept of God, life and the universe. His thoughts are creative and he creates his own misery. ठीक है. अब क्या होता है, भगवान और लाइफ हमें कभी पनिश नहीं करते. मैन को जो पनिश करता है, इंसान को जो पनिश करता है, वो फॉल कॉन्सेप्ट ऑफ भगवान, लाइफ एंड यूनिवर्स. उसके थॉट्स इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो खुद को ही प्रॉब्लम में फंसा लेता है. थैंक यू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर योर लव एंड सपोर्ट. आगे बढ़ते हैं. इफ अनदर क्रिटिसाइजेज यू and these faults are within you, rejoice, give thanks and appreciate the comments. This gives you the opportunity to correct and the particular fault. You cannot be hurt by criticism when you know that you are the master of your own thought, reaction and emotions. This gives you the opportunity to pray and bless the other, thereby blessing yourself. अपने आप को bless करोगे तो दूसरों को भी bless करने का मौका मिलेगा. When you pray for guidance and right action, take what comes. Realize it is good and very good. Then there is no cause of self-pity, criticism or hatred. तो कभी देखना, when you pray for guidance and right action, take what comes. अगर आपने प्रे किया है गाइडेंस या राइट एक्शन के लिए, तो जो अगर सामने से कुछ खतरनाक सी चीज़ आई तो ये मत सोचना कि बुरा हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सब मुझसे ही काम करवाते हैं, ये मत सोचो. रियलाइज इट इज़ गुड. समझो कि आपको जो इतना ज़्यादा हैवी लोड दिया है वो आपके ही बेटरमेंट के लिए है. देन देयर इज नो कॉज फॉर सेल्फ पिटी, क्रिटिसिज्म और हेटर्ड. देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. देयर इज नो इविल इन सेक्स, desire for food, wealth or true expression. It depends on how you use these urges, desire and aspirations. देखो यहाँ बोले there is no evil in sex, the desire for food, wealth और true expression. इन सारी चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, बट डिपेंड करता है कि कैसे आप यूज़ कर रहे हो अपनी अर्जेस, डिज़ायर और एस्पिरेशंस को. ठीक है. योर डिज़ायर फॉर फूड कैन बी मेट विदाउट किलिंग समवन फॉर अ लोफ ऑफ ब्रेड. ठीक है. आपका जो डिज़ायर है खाने के लिए, इतना डिज़ायर जो होता है ना कि मुझे भूख लग रही, ये ना हो कि इतना आपकी भूख बढ़ जाए कि आप एक ब्रेड के टुकड़े के लिए किसी की जान ले लो, है ना. तो डिपेंड करता है. अगर आपको नॉर्मल भूख लगी है, आपने घर वालों को बोला प्लीज़ बना दो, या आपने खुद बना लिया है, दैट इज़ गुड, अच्छी चीज़ है. बट किसी को ब्रेड के टुकड़े के लिए गोली मार देना, दैट इज़ नॉट गुड थिंग.
बढ़ाओ बढ़ाओ चैट रेट बढ़ाओ। अब अगली बुक कब से शुरू करोगे? आज ये ख़त्म करेंगे तो कल से नई बुक, ठीक है? Resentment, hatred, I will. The hostility of behind a host of maladies. Forgive yourself and everybody else by pouring out love, life, and joy, goodwill to all those who have hurt you. Continue until such time as you meet them in your mind and you are at peace with them. Point number 13. To forgive is to give something for. Give love, peace, joy, wisdom, and all the blessing of life to the other. Until there is no sting left in your mind, this is really the acid test for forgiveness. Let us suppose you had an abscess in your jaw about a year ago. It was very painful. Ask yourself if it is painful now. The answer is the negative. Likewise, if someone was hurt you, lied about and vilified you, and said all manners of evil about you, is your own thought of that person negative? Do you sizzle when he or she comes into your mind? If so, the roots of hatred are still there, playing havoc with you and your God. The only way is to wither them with love by wishing for the person all the blessing of life until you can meet the person in your mind and you can sincerely react with benedictions of peace and goodwill. This is the meaning of forgive until 70 times 7. अब हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 18। अभी कुछ हफ्ते पहले भोपाल में एक शॉपकीपर ने एक आदमी को मार दिया क्योंकि उसके बिना पूछे उसका, देखो ये तो कुछ भी नहीं है। आज की न्यूज़ आज तक में मैंने पढ़ी, आपके होश उड़ जाएंगे। अ बॉय किल्ड हिज मदर फॉर पबजी। सिर्फ पबजी के लिए उसने अपनी माँ को गोली मार दी। पहली बात, पबजी की वजह से गोली क्यों मारी? और दूसरी बात, गोली आई कहाँ से इस बच्चे के पास? मुझे नहीं पता कहाँ से आई, पर आज तक में न्यूज़ आई कि पबजी खेलने से उसकी मॉम उसे डांट रही थी, उसने अपनी मॉम को गोली से उड़ा दिया। एंड दैट न्यूज़, मतलब बच्चों को क्या हो गया यार? पबजी इतना इम्पोर्टेंट हो गया, माँ से इम्पोर्टेंट हो चुका है पबजी। इसलिए तो ऐसे गेम्स को बैन कर देना चाहिए, मतलब इन बच्चों को बैन कर देना चाहिए खेलने से। गेम इज़ गुड बट किसी भी चीज़ की अति ना ख़राब होती है। सिगरेट पियो, इतना पियो कि आपके लंग्स ख़राब हो जाए, है ना, होता है ना। अल्कोहल पीने वाले लोग इतना अल्कोहल पीते हैं कि लिवर सब कुछ ख़राब हो जाता है, उनकी बॉडी में कुछ बचता ही नहीं। और कोई भी चीज़, और बोलते हैं अल्कोहल का अगर आप हफ्ते में एक बार सेवन करें, मतलब क्वांटिटी आपकी बिल्कुल कम रहनी चाहिए, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके मूड के लिए अच्छा है, आपके फेस पे ग्लो आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आप देखो तो। पर धीरे धीरे वो लत बन जाए और आप उसको डेली पियो और फिर उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी भी चीज़ को अति नहीं करनी है। अगर पानी भी आप 4 या 5 लीटर पी लो एक ही बारे में, तो किडनी भी फेल हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेस नहीं कर पाएगी किडनी इतना। नमक कम खाओगे, ज़्यादा खाओगे तो दिक्कत, मीठा ज़्यादा खाओगे डायबिटीज़ हो जाएगी। तो वही चीज़ है, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है, बिल्कुल आपकी ब्रेड के टुकड़े की बात का उल्टा। हाँ, गोली की न्यूज़ मैंने सुनी है। अच्छा, शुभ रात्रि, बाय बाय, कल मिलेंगे। तुस्सी ना जाओ, तुस्सी जा रहे हो, तुस्सी ना जाओ। अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड मेंटल ब्लॉक्स को निकालेगा, ये हम पढ़ेंगे। और ये कब ख़त्म होगा मैं बता देता हूँ। ये छोटा चैप्टर आई गेस, और लास्ट 19 चैप्टर आई गेस, 19 चैप्टर तक है ये 20 है, 21 तक तो नहीं है कहीं। ओके 20 है, देन आई गेस 20 है, लास्ट चैप्टर इज 20। तो अभी हम लोग 18 पे हैं। हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। द सोल्यूशन लाइज विद इन द प्रॉब्लम। हमेशा याद रखना, सोल्यूशन कहाँ मिलता है? प्रॉब्लम के अंदर। द आंसर इज इन योर एवरी क्वेश्चन। If you are presented with a difficult situation and you cannot see your way clear, the best procedure is to assume that infinite intelligence within your subconscious mind knows all and see all, has the answer and is revealing it to you now. Your new mental attitude that the creative intelligence is bringing about a happy solution will enable you to find the answer. Rest assured that such an attitude of mind would bring order, peace, and meaning to your life, your undertaking. How to break your bad habit.
कैसे आप अपनी एक आदत को, हाउ टू ब्रेक और बिल्ड अ हैबिट, कैसे आप अपनी आदत को बनाओगे, कैसे आप मतलब किसी हैबिट को छोड़ोगे या फिर उस हैबिट को बनाओगे। यू आर अ क्रिएचर ऑफ हैबिट, आप एक ऐसे इंसान हो जो कि हैबिट से ही बना है। हैबिट इज़ द फंक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हैबिट एक फंक्शन है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। यू लर्न टू स्विम, राइड अ बाइसिकल, डांस एंड ड्राइव अ कार बाय कॉन्शियसली डूइंग दीज थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल दे एस्टैब्लिश ट्रैक्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपने जितनी भी चीज़ें करी हैं बैक टू बैक करते 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 इतनी बार की कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया है। तभी तो अगर आप अगर स्विमिंग करते हो और मैंने आपको पानी में डाल दिया तो आपके हाथ अपने आप चलेंगे, चाहे आप 1 महीने बाद जाओ, 2 महीने बाद जाओ या 1 साल बाद जाओ, आपके हाथ चलेंगे। आपने 1 साल फुटबॉल खेला, उसके 6 साल बाद मैं आपको बोलूँ कि किक करो फुटबॉल को, तो आपको पता होगा कैसे करना है। आई नो आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, भाग नहीं पाओगे, बट आपको ये याद रहेगा किस टेक्निक से किक करना है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका है किक कैसे किया जाता है बॉल को। ठीक है, अब आप पबजी खेलते हो तो आपसे मैंने 7-8 साल बाद बोला कि दोबारा पबजी खेलना, तो आप खेल पाओगे, क्योंकि वो स्किल्स आपके अंदर है। अगर आपने 3-4 साल खेला हुआ है और उसके बाद गैप ले लिया और फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई खेलो, तो आप खेल लोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, क्योंकि वो आपके हाथ सेट हो चुके हैं। Then the automatic habit action of your subconscious mind took over. This is sometimes called second nature. This which is a reaction of your subconscious mind to your thinking and acting. तो ये एक रिएक्शन है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, जो आप सोचते हो या फिर जो आप एक्ट करते हो। सो ऑलवेज एक्ट एंड थिंक अबाउट द गुड थॉट्स, मतलब अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो और एक्टिंग भी उन्हीं की करो। मतलब अगर आपको रनिंग करनी है, एक एथलीट बनना है, तो उसके बारे में सोचो और वही करो। सबकॉन्शियस माइंड उसे अपने दिमाग में बैठा लेगा और आपको जो चाहिए वो बना देगा। You are free to choose a good habit or a bad habit. If you repeat a negative thought or act over a period of time, you will be under the compulsion of a habit. The law of your subconscious mind is compulsion. How he broke a bad habit. Mr. Jones said to me, an uncontrollable urge to drink seizes me, and I remain drunk for 2 weeks at a time. I cannot give up this terrible habit. Time and time again, these experiences had occurred to this unfortunate man. He had grown into the habit of drinking to excess. Although he had started drinking of his own initiative, he also began to realize that he could change the habit and established a new one. He said that while through his willpower he was able to suppress his desire temporarily, his continued efforts to suppress the many urges only made matters worse. His repeated failures convinced him that he was hopeless and powerless to control his urges or obsessions. This idea of being powerless operated as a powerful suggestion to his subconscious mind and aggravated his weakness, making his life a succession of failures. तो किसी ने उसे बोला कि भाई जो तेरा मतलब तू ज़िंदगी में ना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, तू अच्छा नहीं बन पाएगा। तो उसने अपने दिमाग में यही चीज़ को 100 बार सोचने लग गया, और जब वो एक ही चीज़ को 100 बार सोचने लगा तो वो कंप्लीट उसकी लाइफ एक फेलियर की लाइफ हो चुकी थी। अब ऑथर ने क्या किया, आई टॉट हिम टू हार्मोनाइज द फंक्शन ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को हार्मोनाइज करो, दोनों को सिंक करने की कोशिश करो। व्हेन दीज टू कोऑपरेट द आइडिया एंड डिज़ायर इम्प्लांटेड इन द सबकॉन्शियस माइंड इज़ रियलाइज्ड। तो बोला गया कि जब आप इनको ध्यान से चीज़ों को करोगे, दोनों को कोऑपरेट करेंगे, जब ये दोनों माइंड एक साथ, तो आप देखना जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। हेलो स्मार्ट वर्ल्ड, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू द चैनल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। आगे बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड, गिव मी सम टाइम। थोड़ा समय दीजिए। ओके, कल क्यों नहीं आया? कल आया था, मैं 20 मिनट्स के लिए आया था,
येस्टरडे आई केम फॉर 20 minutes स्मार्ट वर्ल्ड, बट आपने शायद नोटिस नहीं किया। कल मैं आया था, थोड़ी देर के लिए आया था। आज एक्चुअली मुझे सुबह जाना था, मैंने स्ट्रीमिंग में बताया था कि थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा क्योंकि कल सुबह हमें वर्कआउट में जाना था। तो आज मैं वर्कआउट सुबह करके आया था, इसलिए कल रात को मैं आया था फॉर 20 minutes ओनली, 20 मिनट के लिए आया था। His reasoning mind agreed that if the old habit path or track had carried him into trouble, he could consciously form a new path to freedom. तो बोला कि कभी भी आप ट्रबल में फंसते हो तो आप कॉन्शियसली एक नया पाथ बना सकते हो फ्रीडम का। sobriety and peace of mind. He knew that his destructive habit was automatic, but since it was acquired through his conscious choice, he realized that if he had been conditioned negatively, he also could be conditioned positively. उसने सोचा जब मैं अपनी कंडीशन को नेगेटिव बना सकता हूँ तो मैं पॉजिटिव भी बना सकता हूँ। As a result, he stopped thinking of the fact that he was powerless to overcome the habit. तो उसने एक चीज़ पे ध्यान दिया कि उसके अंदर इतनी पावर है कि वो अपने नेगेटिव थॉट्स को पावरलेस बना सकता है और कोई भी हैबिट को ओवरकम कर सकता है या फिर कोई भी न्यू हैबिट बना सकता है। मोर ओवर ही अंडरस्टूड क्लियरली दैट देयर वॉज नो ऑब्स्टिकल टू हिज हीलिंग अदर देन हिज ओन थॉट। तो उसको सिंपली समझ में आ गया है कि अपने को हील हम खुद कर सकते हैं। हमारे अंदर जो ऑब्स्टिकल है दिमाग में है वो और कहीं नहीं है। मैंने आज देखा कि एक हाई जंप में एक प्लेयर प्रैक्टिस कर रहा था, उसके पैर नहीं थे, बट स्टिल ही इज़ ट्राइंग, मतलब एक पैर नहीं था, स्टिल ही इज़ ट्राइंग टू जंप द 4 फीट। 4 फीट आप समझ सकते हो कितना एक बड़ा टारगेट है। एक नॉर्मल बंदा, एवरेज बंदा भी 4 फीट तक नहीं कूद सकता, बिकॉज हिज माइंड इज़ लिमिटेड। उसका दिमाग कहता है तू नहीं उछल पाएगा इतना। बट अ पर्सन हु हैज़ ओनली 1 लेग, उसके बाद भी कोशिश कर रहा है उस 4 फीट के गोल को पार करने की। बहुत ही बड़ी बात है। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है, उनको आप मोटिवेट कर सकते हो कि यार आप लोग हारो मत, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और आप उन्हें दिखाइए कि लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि उनके पास चीज़ें नहीं हैं बट स्टिल दे आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग इन देयर लाइफ। अपनी पहचान बना रहे हैं अपनी मेहनत से। Therefore, there was no occasion for great mental efforts or mental coercion. The power of his mental picture. This man acquired a practice of relaxing his body and getting into a relaxed, dorsey, meditative state. Then he filled his mind with the picture of desired end, knowing his subconscious mind could bring it about the easiest way. ठीक है, तो जो वो अपने दिमाग में पिक्चर बना रहा है, जो वो चाहता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बार बार बता रहा है, तो वो सबसे ईजीएस्ट वे है उन चीज़ों को अपने पास लाने का। ही इमेजिन हिज डॉटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज फ्रीडम एंड सेइंग टू हिम, डैडी इट्स वंडरफुल टू हैव यू होम। ही हैड लॉस्ट हिज फैमिली थ्रू ड्रिंक, he was not allowed to visit them, and his wife would not speak to him. Regularly, systematically, he used to sit down and meditate in the way outlined. When his attention wandered, he made it a habit to immediately recall the mental picture of his daughter with her smile and the scene of his home, enlivened by her cheerful voice. All this brought about a recondition of his mind. It was a gradual process. He kept it up. He preserved, knowing that sooner or later he would establish a new habit pattern in subconscious mind. I told him that he could link in his conscious mind to a camera, that his subconscious mind was a sensitive plate on which he registered and impressed the picture. This made a profound impression on him, and his whole aim was to firmly impress the picture on his mind and develop it there. Films are developed in the dark, likewise, mental pictures are developed in the darkened room of the subconscious mind. Wait a second, guys. Thanks for the chats, guys. Thanks for the chat. Binod. Bye, Binod. आगे बढ़ते हैं. Focused attention. Realizing that his conscious mind was simply a camera, he used no effort. There was no mental struggle. He quietly adjusted his thoughts and focused his attention on the scene before him until he gradually became identified with the picture. He became absorbed in the mental atmosphere, repeating the mental movie frequently. There was no room for doubt that a healing would follow when there was any temptation to drink.
He would switch his imaginations from any revirers of drinking bouts to feel of being at home with his family. He was successfully because he confidently expected to experience the picture he was developing in his mind. तो वो जो अपने दिमाग में पिक्चर बना रहा था वो कॉन्फिडेंट था कि ये सारी चीज़ें होंगी. Today he is president of a multi-millionaire dollar concern and is radiantly happy. और जो उसने सोचा था वही वो बन गया. There was no room for doubt that a healing would follow. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. When there was any temptation to drink, he would switch his imagination from any reverse of drinking bouts to the feeling of being at home with his family. He was successful because he confidently expected to experience the picture he was developing in his mind. उसने सक्सेस इसलिए हासिल की क्योंकि उसके दिमाग में जो पिक्चर थी उस पर उसे भरोसा था ज़िंदगी भर तक. He said a jinx was following him. अब उसने बोला कि मुझे एक जिन्स फॉलो कर रहा है. Mr. Block said that he had been making an annual income of $20,000, but for the past 3 months, all doors seemed to jam tightly. He brought clients up to the point where they were about to sign on the dotted line, and then at the 11th hour of the door closed. He added that perhaps a jinx was following him. In discussing the matter with Mr. Block, I discovered that 3 months previously he had become very irritated, annoyed, and resentful towards a dentist who, after he had promised to sign a contract, had withdrawn at the last moment. He began to live in the unconscious fear that other clients would do the same, thereby setting up a history of frustration, hostility, and obstacle. He gradually built up in his mind a belief in obstructions and last minute cancellation until a vicious circle had been established. What I fear the most has come upon me. Mr. Brock realized that the trouble was in his mind and that it was essential to change his mental attitude. तो इस बात से उसे पता चल गया उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, उसके दिमाग में ऑब्स्टिकल्स है. His run of so-called misfortune was broken in the following way. I realize I am one with the infinite intelligence of my subconscious mind which knows no obstacle, difficulty or delay. I live in the joyous expectancy of the best. My deeper mind responds to my thoughts. I know that the work of the infinite power of my subconscious cannot be hindered. Infinite intelligence always finishes successfully whatever it begins. Creative wisdoms work through me, bringing all my plans and purpose to completion. Whatever I start, I bring to the successful conclusions. My aim in my life is to give wonderful service, and all those whom I contact are blessed by what I have to offer. All my work comes to full fruition in divine order. He repeated this prayer every morning before going to call on his customers, and he also prayed each night prior to sleep. In a short time, he had established a new habit pattern in subconscious mind, and he was back in his mind old custom stride or as a successful salesman. तो उसने एक हैबिट बनाई रोज़ रात को जाने से पहले अपने सोने से पहले अपने ड्रीम्स के बारे में बात की अपने दिमाग से, और उसके दिमाग ने उसको हेल्प किया चीज़ों को उसके पास लाने के लिए. एक सेकंड गाइस. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. टू 200 का कंप्लीट कर लेना. आई गेस 222 तक है ना, तो कल 20 पेजेस पढ़ लेंगे. अब हम लोगों ने 18 शुरू कर दिया तो 18 ख़त्म कर लेते हैं. How much do you want what you want? A young man asked Socrates how he could get wisdom. कैसे मैं wisdom पाऊँ? Socrates replied, "Come with me." He took the lad to a river, pushed the boy head under the water, held it there until the boy was gasping for air, then relaxed and released his head. When the boy regained his composure,
composure, he asked him, "What did you desire most when you were underwater?" "I wanted air," said the boy. Socrates said to him, "When you want wisdom as much as you wanted air, when you are immersed in the water, you will receive it." क्या बात कही है फैज़ान हैदर, मस्त। हाउ आर यू फैज़ान हैदर? तो एक बहुत ही अच्छी बात कही, देखो बोला कि एक यंग मैन था, वो चाहता था कि उसे विजडम मिल जाए, तो उसको वो बंदा ले जाता है और कहता है कि तुम्हें विजडम चाहिए, चलो मेरे साथ। उसकी मुंडी पकड़ता है और पानी के अंदर डाल देता है, और तब तक वो मुंडी बाहर नहीं निकालता जब तक वो ऐसे बोलता है, भाई भाई वो सांस नहीं आया, मतलब होता है ना कि सांस नहीं आ रही, वो तड़प रहा है। तब उसने उसकी मुंडी खींची और वापस लिया। तो कहा कि तुम्हें विजडम चाहिए ना, तो एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हारी मुंडी पानी के अंदर डाली तो तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था उस टाइम पे? कह रहा मुझे तो बस हवा चाहिए थी, सांस लेनी थी भाई, जब मैं उस पानी के अंदर था। तो कह रहा जब तक तुम्हें विजडम इसके जैसी नहीं चाहिए होगी तब तक नहीं मिलेगी। मतलब इतना आपको झेलना पड़ेगा तब जाके आपको विजडम मिलेगी। मतलब वो चाह होती ना, चाह कि हाँ भाई मुझे सांस लेनी है, वैसे ही मुझे विजडम लेनी है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो व्हेन द बॉय रिगेन द कंपोजर हो चुका है, वांटेड एयर हो गया है। Likewise, when you really have an intense desire to overcome any block in your life, and you can to clear cut decision that there is a way out, and that is the course you wish to follow, then victory and triumph are assured. तो जब आपने ठान ली है तो विक्ट्री और ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर मिलेगी और जीत आपके पास ज़रूर आएगी। If you really want peace of mind and inner calm, you will get it. अगर आपको peace of mind चाहिए और inner calm चाहिए तो वो मिलेगा, regardless of how unjustly you have been treated, or how unfair the boss has been, or what a mean scoundrel someone has proved to be. All this makes no difference to you when you awaken to your mental and spiritual powers. You know what you want, and you will definitely refuse to let the thief's thoughts of hatred, anger, hostility, and ill will rob your peace, harmony, and health and happiness. You stop to become upset by people, condition, news, and events by identifying your thoughts immediately with your aim in life. अगर आपने ये सीख लिया कि कैसे अपने अपने थॉट्स को मैनेज करना है, तो कभी आप लोगों की बातों से अपसेट नहीं होंगे, कोई न्यूज़ से अपसेट नहीं होंगे, कोई भी इवेंट से आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने दिमाग में अपने थॉट्स को कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में। आप उसके बारे में ज़्यादा कंसर्न रहोगे ना, फालतू की बातों में थोड़ी ना कोशिश करोगे आप उसमें घुसने की। योर एम इज़ पीस, हेल्थ, इंस्पिरेशन, हार्मनी एंड अबंडेंस। आपका क्या है एम? पीस चाहिए, हेल्थ चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, हार्मनी चाहिए, एंड जो चाहिए सब ज़्यादा चाहिए। फील अ रिवर ऑफ पीस फ्लोइंग थ्रू यू नाउ। सोचो कि एक पीस वाली रिवर आपके थ्रू जा रही है। योर थॉट इज द इमटेरियल एंड इनविजिबल पावर, एंड यू चूज टू लेट इट bless, inspire, and give you peace. Why he could not be healed? This is a case history of a married man with 4 children who was supporting the secretly living with another woman during the business trips. He was ill, nervous, irritable, and cantankerous, and he could not sleep without drugs. The doctor's medicine failed to bring down his blood pressure of over 200. He had pains in numerous organs of his body, which doctor could not diagnose or relieve. To make matters worse, he was drinking heavily. और उसने और चीज़ों को ख़राब करने के लिए और पीना शुरू कर दिया. The cause of all this was a deep unconscious sense of guilt. अब क्या हुआ, उसका unconscious sense काफ़ी गिल्ट में है. He had violated the marriage vows. उसने अपनी शादी का वो जो वाव हम होते हैं ना 7 फेरों में हम 7 वचन निभाते हैं, तो उसने वो तोड़ दिए. And this troubled him, and religious creed he was brought up on was deeply lodged in his subconscious mind, and he drank excessively to heal the wound of guilt. Some invalids make morphine and codeine for severe pain. He was taking alcohol for the pain and wound in his mind. वो दारू पी रहा था अपने पेन को भुलाने के लिए, पर उसके दिमाग में था असली दर्द, तो ज़ख़म तो दिमाग में है. इट वॉज द ओल्ड स्टोरी ऑफ एडिंग फ्यूल टू द फायर. और वो कर क्या रहा था? जले पे नमक छिड़क रहा था, आग में और
पेट्रोल डाल रहा था. The explanations and the cure. He listened to explanations. He listened to explanation of his mind worked. The faced his problems and he faced his problem. Looked at it, the gave up his dual role. उसने gave up कर दिया अपने dual role को. He knew that drinking was an unconscious attempt to escape. उसको पता है कि अगर मैं ड्रिंक कर रहा हूँ तो ये एक अनकॉन्शियस अटेम्प्ट है उस चीज़ से निकलने का. द हिडन कॉज लॉज्ड इन हिज सबकॉन्शियस माइंड एंड हैड टू बी एराडिकेटेड, देन द हीलिंग वुड फॉलो. जब वो अपने दिमाग से मतलब चीज़ों को निकालेगा तभी तो हील करेगा. ही बिगेन टू इम्प्रेस हिज सबकॉन्शियस माइंड 3 or 4 times a day by using the following phrase. अब क्या किया उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करना शुरू किया. माई माइंड इज़ फुल ऑफ पीस, पॉइस, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम. उसने बोलना शुरू किया मेरा जो दिमाग है वो काफ़ी शांत है, पायस है, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है. द इन्फिनाइट लाइज स्ट्रेस्ड इन स्माइलिंग रिपोज विद इन मी. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इन द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर. उसने बोला मुझे कोई डर नहीं है मेरे पास से, मेरे फ्यूचर से, मेरे प्रेजेंट से. द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड लीड्स, गाइड्स एंड डायरेक्ट मी इन ऑल वेज. I now meet every situation with faith, pious, calmness, and confidence. I am now completely free from the habit. My mind is full of inner peace, freedom, and joy. I forgive myself, then I am forgiven. Peace, sobriety, and confidence reign supreme in my mind. He repeated this prayer frequently as outlined. Being fully aware of what he was doing and why he was doing it, knowing what he was doing gave him necessary faith and confidence. I explained to him that as he spoke these statements out loud, slowly, lovingly, and meaningfully, they would gradually sink down into the subconscious mind. Like seeds, they would grow after their kind. These truths on which he concentrated went in through his eyes, his ears heard the sound and the healing vibration of these words reached his subconscious mind and obliterated all the negative mental patterns which caused all the troubles. Light dispels darkness, and constructive thought destroy the negative thought. He became a transformed man within a month. Refusing to admit it. If you are alcoholic or drug addict, admit it. Do not dodge the issue. Many people remain alcoholic because they refuse to admit it. Your disease is instability and inner fear. You are refusing to face life, and so you are trying to escape your responsibility through the bottle. As an alcoholic, you have no free will, although you think you have, and you may even boast about your willpower. If you are habitual drunkard and say bravely, I will not touch it anymore, you have no power to make this assertion come true because you do not know where to relocate the power. You are living in a psychological prison of your own making, and you are bound by your belief, opinion, training, and environmental influences. Like the most people, you are a creature of habit. You are conditioned to react the way you do, building in the idea of freedom. You can build the idea of freedom and the peace of mind into the mentality so that it reaches your subconscious depth. The latter, being all powerful, will free you from all desire for alcohol. Then you will have the new understanding of how your mind works, and you can truly back up your statement and prove the truth to yourself. ठीक है, अपने दिमाग में एक ऐसा आइडिया बनाना है जो कि आपको फ्रीडम दिला सके. तो उसने क्या किया, will free you. You can build idea of freedom and peace of mind into your mentality so that it reaches your subconscious depths. उसको एक ऐसा आइडिया बनाना है जो कि उसके दिमाग को फ्रीडम दिला सके और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड के डेप्थ में पहुंचाना है. All powerful will free you from all desire for alcohol. Then you will have the new understanding of how your mind works, and you can truly back up your statement and prove the truth to yourself. 51% healed. If you have a keen desire to free yourself from any destructive habit, you are 51% healed already. अगर आपने सोच लिया है कि मुझे किसी हैबिट से दूर होना है तो 51% आप तो ऑलरेडी हील्ड हो, 49 रह गया बस.
When you have a greater desire to give up the bad habit than to continue it, you will not experience too much difficult in gaining complete freedom. Whatever thought you anchor the mind upon, the latter magnifies. If you engage the mind on the concept of freedom, freedom from the habit, the peace of mind, and if you keep it focused on this new direction of attention, you generate feelings and emotions which gradually emotionalize and concept of freedom and peace. Whatever idea you emotionalize is accepted by your subconscious and brought to pass. The law of substitution. Realize that something good can come out of your suffering. You have not suffered in vain. However, it is foolish to continue to suffer. If you continue as alcoholic, it will bring about mental and physical deterioration and decay. Realize that the power in your subconscious mind is backing you up, even though you may be seized with melancholia. You should begin to imagine the joy of freedom that is in store for you. This is the law of substitution. Your imagination took you to the bottle. Let it take you now to freedom and peace of mind. You will suffer a little bit, but it is for constructive purpose. You will bear it like a mother in the pangs of childbirth, and you will likewise bring forth a child of the mind. Your subconscious will give birth to sobriety. Cause of alcoholism. क्या cause है लोग alcoholism हो जाते हैं? The real cause of alcoholism is negative and destructive thinking. For a man thinketh, so is he. The alcoholic has a deep sense of inferiority, inadequacy, defeat, and frustration, usually accompanied by a deep inner hostility. He has countless abilities as to his reason for drinking, but the sole reason in his thought of life. Three magic steps. The first steps: get still, quiet the wheels of the mind, enter into sleepy, dorsey state. In this relaxed, peaceful, receptive state, you are preparing for the second step. The second step: take a brief phrase which can readily be graven on this memory and repeat it over and over again. As a lullaby, use the phrase sobriety and peace of mind are mine now, and I give thanks. To prevent the mind from wandering, repeat it aloud or sketch its pronunciation with the lips and tongue as you say it mentally. This helps its entry into subconscious mind. Do this for 5 minutes or more. You will find a deep emotional response. अगर आप इसे करोगे, जैसे बोलोगे I give thanks to prevent the mind from wandering, repeat it aloud and sketch its pronunciation with the lips and tongues as you say it mentally. ऐसे बोलो कि आप उसको चीज़ को फील करो. दिस हेल्प इन एंट्री इनटू सबकॉन्शियस माइंड, और इन चीज़ों को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री कर दोगे इन वर्ड्स की. डू दिस फॉर 5 minutes मोर एंड यू विल फाइंड डीप इमोशनल रिस्पॉन्स. The third step: just before going to sleep, practice what John von Goethe, German author, used to do. The imagine you are relaxed at peace. आप सोचो कि आप relaxed और peace पे हो. The loved one or friends is subjectively present and is saying to you, congratulations. You see the smile, you can hear the voice, you can mentally touch the hand. It is all real and vivid. The word congratulations imply complete freedom. Hear it over and over again until you get subconscious reaction which satisfies. Keep on keeping on. When fear knocks at the door, your mind, or when worry, anxiety, and doubt cross your mind, behold your vision, your goal. Think of infinite power within your subconscious mind, which you can generate by your thinking and imagining, and this will give you confidence, power, and courage. Keep on preserve until the day breaks and the shadows flee away. Review your thought power. अब आपको रिव्यू करना है अपने थॉट पावर को. द सोल्यूशन लाइज विद इन द प्रॉब्लम. हमेशा याद रखना सोल्यूशन कहाँ लाई करता है, प्रॉब्लम के अंदर. द आंसर इज in every situation, in every question. Infinite intelligence responds to you as you call upon it with faith and confidence. Infinite intelligence कब जवाब देगा, जब आप उस पर भरोसा करोगे और कॉन्फिडेंस दिखाओगे. Habit is function of your subconscious mind. There is no greater evidence
of marvelous power of your subconscious mind than the force and survey habits hold in your life. You are creature of habit. आप लोग creature हैं habit के. You form habit patterns in your subconscious mind by repeating a thought and act over and over again until it establishes track in your subconscious mind and become automatic, such as swimming, dancing, typing, walking, driving your car, etc. तो वो कह रहा है कि आप अपने दिमाग में एक पैटर्न बनाते हो सबकॉन्शियस माइंड में और उसको बार बार रिपीट करते हो, बार बार सोचते हो, बार बार करते हो और वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, जैसे स्विमिंग, कार ड्राइविंग और बहुत सारी चीज़ें. टॉपिक नंबर 4, यू हैव फ्रीडम टू चूज़. आपके पास फ्रीडम है. यू कैन चूज़ अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट. प्रेयर इज़ अ गुड हैबिट. वट एवर मेंटल पिक्चर बैक एंड बाय फेथ यू बी होल्ड इन योर कॉन्शियस माइंड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड विल ब्रिंग टू पास. द ओनली ऑब्स्टिकल टू योर सक्सेस एंड अचीवमेंट इज़ योर ओन थॉट और मेंटल इमेज. तो कह रहे हैं आप अपनी चीज़ों के लिए खुद आपका दिमाग रिस्पॉन्सिबल है. When your attention wanders, bring it back to the contemplation of your good or goals. अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो अपने गोल्स की तरफ लगाइए. मेक अ हैबिट ऑफ दिस और उसको बार बार रिपीट करते जाइए. दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिनिंग द माइंड. इसको कहते हैं डिसिप्लिन करना. अगर आप गेम खेल रहे हो तो उससे डिसिप्लिन करो पढ़ाई की तरफ, ठीक है, हिलने मत दो. योर कॉन्शियस माइंड इज़ अ कैमरा and your subconscious mind is a sensitive plate on which you register or impress the picture. The only jinx that follows anyone is a fear thought repeated over and over in the mind. Break the jinx by knowing that whatever you start, you will bring to a conclusion in divine order. Picture the happy ending and sustain it with confidence. To form a new habit, you must be convinced that it is desirable. When you desire to give up, the bad habit is greater than your desire to continue. You are 51% healed already. अगर आप किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हो तो 51% तो आप ऑलरेडी हील हो चुके हैं. आपको और थोड़ा हील करना है बस. ठीक है. The statement of others cannot hurt except through your own thoughts and mental participation. Identify yourself with your aim, which is peace, harmony and joy. You are the only thinker in your universe. आप अपने खुद के thinker हैं. Excessive drinking is an unconscious desire to escape. The cause of alcoholism is negative and destructive thinking. The cure is to think of freedom, sobriety and perfection and to feel the thrill of accomplishment. 13. Many people remain alcoholics because they refuse to admit. तो देखो बहुत सारे लोग अल्कोहलिक रह जाते हैं क्योंकि वो रिफ्यूज़ कर देते हैं उस चीज़ को मानना कि हम नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकता हमारा कुछ. For in the law of your subconscious mind which held you in bondage and inhibited your freedom of action will give you freedom and happiness. It depends on how you use it. Your imaginations took you to the portal. Let it take you freedom by imagining you are free. The real cause of alcoholism is negative and destructive thinking. As a man thinking in his heart, subconscious mind, so is he. When fear knocks at the door, your mind, let faith in good and all things good open the door. अब 19 चैप्टर शुरू होगा मेरे दोस्त. ये है हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर. और फियर एक सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो कि हमें बहुत रोकती है लाइफ में. किसी की भी ज़िंदगी में ये फियर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर एक बार ये फियर आपकी ज़िंदगी में आ गया तो कोई भी आप काम नहीं कर पाओगे. तो ऑलवेज रिमूव फियर फ्रॉम योर लाइफ. How to use your subconscious mind to remove fear. Hello यशवंत पाटिल, वेलकम बैक टू द चैनल. रात को 11 बजे हमारे साथ बैठने के लिए शुक्रिया. One of our student told me that he was invited to speak at a banquet. उसके एक स्टूडेंट को बोला कि बैंकेट में और कुछ बोलना है, आपको स्पीक करना है. He said he was panic stricken at the thought of speaking before 1,000 people. तो वो एक तरह से पैनिक अटैक आया उसे कि भाई मैं इतने लोगों के आगे कैसे बोलूँगा, 1000 लोगों के आगे कैसे बोलूँगा. He overcame his fear this way. For several nights he sat down in an armchair for about 5 minutes and said himself slowly, quietly and positively, I am going to master this fear. उसने कैसे किया, 5 मिनट रोज़ वो अपनी आर्म चेयर में बैठा आराम से क्वाइटली और उसने बोला I will slowly, quietly, positively master this fear. I am overcoming it. Now I speak with pious and confidence.
I am relaxed and at ease. He operated a finite law of mind and overcome this fear. The subconscious mind is amenable to suggestion and is controlled by suggestion. When you still your mind and relax, the thoughts of your subconscious mind sink down into the subconscious through a process similar osmosis, whereby fluid separated by porous and membrane intermingle. As these positive seeds or thoughts sink into the subconscious area, they grow after their kind and you become poised, serene and calm. मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा है ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जब पानी फिल्टर होता है, जैसे सैंड अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है और साफ़ पानी इधर चला जाता है और गंदा पानी, मतलब गंदा पानी नहीं, गंदगी उधर रह जाती है। तो वैसे ही अच्छे थॉट्स आपके धीरे धीरे करके जितना आप अच्छा सोचोगे उतना वो धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और वहाँ जाके ग्रो करेगा। Men's greatest enemy. It is said that the fear is men's greatest enemy. Fear is behind failure, sickness, and poor human relations. Millions of people are afraid of the past, the future, old age, insanity, and death. Fear is a thought in your mind, and you are afraid of your own thoughts. मतलब हमारे दिमाग का एक थॉट है फियर और कुछ नहीं है. You are afraid of your own thought. और हम लोग अपने ही थॉट से डर रहे हैं. हमें लग रहा है कि हम 100 लोगों के आगे नहीं बोल पाएंगे, दिस इज़ माई थॉट, पर मैं वहाँ बोल सकता हूँ, ये भी एक थॉट है ना. अ लिटिल बॉय कैन बी पैरालाइज्ड with fear when he is told there is a boogeyman under his bed that is going to take him away. तो एक बंदा पैरालाइज हो सकता है, एक बच्चा पैरालाइज हो सकता है अगर उसे बोल दिया जाए आपके बिस्तर के नीचे एक बूगीमैन है, तो वो डर के मारे जाम हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है. When his father turns on the light and shows him there is no boogeyman, he is freed from fear. और जब उसके पापा लाइट जलाते हैं और नीचे दिखाते हैं भाई कोई नहीं है यहाँ, सो जा चुपचाप, तो उसका डर चला जाता है. The fear in the mind of the boy was real, as if there really was a boogeyman there. तो उस बंदे के दिमाग में एक फियर है जो कि नहीं जाएगा, है ना, वो रियल है, उसके दिमाग में वो चीज़ रियल है, तो उसको डर लगेगा. ही वॉज हील्ड ऑफ अ फॉल्स थॉट इन हिज माइंड. तो जब उसके पापा ने वो चीज़ दिखाई तो वो अपने दिमाग से हील कर गया उस फॉल्स थॉट के लेकर. द थिंग ही फियर डिड नॉट एग्जिस्ट. फाइनली उसे लगा कि जो मैं बिलीव करता था वो नहीं है. लाइक वाइज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स हैव नो रियलिटी. और ऐसे ही बहुत सारे डर ऐसे होते हैं जो रियल में होते ही नहीं हैं. दे आर मर्जली अ कॉन्ग्लोमेरिटेशन ऑफ सिनिस्टर शैडोज एंड शैडोज हैव नो रियलिटी. तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि मतलब शैडोज़ होते हैं और शैडोज़ की कोई पहचान नहीं होती. डू द थिंग्स यू फियर. उन चीज़ों को करो जिससे आप डरते हो. राल्फ वाल्डो एमर्सन, फिलोसफर एंड पोएट, सेड डू द थिंग्स यू आर अफ्रेड टू डू एंड डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन. हमेशा याद रखना, डेथ ऑफ फियर, जो मरने का डर होता है वो तो श्योरिटी है, वो उससे आप नहीं भाग सकते, ठीक है, वो सच है. पर यही सोचते सोचते ज़िंदगी गंवाना इज़ नॉट अ गुड डील. जियो ज़िंदगी को, क्योंकि मौत तो एक दिन आनी है, सबको आनी है. There was a time when the writer of this chapter was filled with unutterable fear when standing before an audience. आप जिस बुक के ऑथर के बारे में सुन रहे हो, एक पल में उसको भी डर लगा था. And the way I overcome it was to stand before the audience, do the thing I was afraid to do, and the death of the fear was certain. When you affirm positively that you are going to master your fears and you come to definite decision in your conscious mind, you release the power of subconscious mind which follows in response to the nature of your thought. Banishing stage fright. A young lady was invited to an audition. She had been looking forward to the interview. However, on 3 previous occasions, she had failed miserably due to stage fright. She possessed a very good voice, but she was certain that when the time came for her to sing, she would be seized with stage fright. The conscious subconscious mind takes your fears as a request, proceeds to manifest them, and brings them into your experience. On 3 previous auditions, she sang wrong notes and she finally broke down and cried. The cause, and as previously outlined, was an involuntary autosuggestions, a silent fear thought emotionalized and subjectified. She overcome it by the following technique. 3 times a day she isolated herself in a room. She sat down comfortably in her
armchair, relaxed her body, and closed her eyes. She stilled her mind and body to the best of her abilities. Physically, inertia favors passivity and renders the mind more receptive to suggestions. The she counteracted the fear suggestion by its converse, saying to herself, I sing beautifully, I am poised, sunny, confident, and calm. She repeated the words slowly, quietly, and with feeling from 5 to 10 times at each sitting. She had 3 such sittings every day and one immediately prior to sleep at night. At the end of a week, she was completely poised and confident and gave a definitely outstanding audition. Carry out the above procedure and the death of fear is certain. हमेशा याद रखना है कि जो डेथ का जो फियर है वो एक सर्टेन चीज़ है, उससे आप भाग नहीं सकते. फियर ऑफ फेलियर क्या होता है? Occasionally, young men from the local university come to see me, as well as school teachers who often seems to suffer from suggestive amnesia at examinations. The complaint is always the same. I know the answers after the examination is over, but I can't remember the answers during the examination. अब पता है, आई नो द आंसर्स आफ्टर द एग्जामिनेशन इज़ ओवर. मुझे आंसर पता होता है एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद, एग्जामिनेशन ख़त्म होने से पहले, पर एग्ज़ाम के टाइम पे मैं सब कुछ भूल जाता हूँ बिकॉज ऑफ द फियर. द आइडिया विच रियलाइजेज इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द one to which we invariably give concentrated attention. I find that each one is obsessed with the idea of failure. Fear is behind the temporary amnesia and it is the cause of whole experience. One young medical student was the most brilliant person in his class, yet he found himself failing to answer simple questions at the time of written or the oral examination. I explained to him that the reason was he had been worrying, was fearful for several days previous to the examinations. These negative thoughts become charged with fears. Thoughts enveloped in powerful emotions of fears are realized in subconscious mind. In other words, this man was requesting his subconscious mind to see to it that he failed, and that is exactly what it did. On the day of the examination, he found himself stricken with what is called in psychological circles suggestive amnesia. ठीक है, तो पेज नंबर 200 तक हम पहुंच गए हैं. अब सिर्फ आई गेस चैप्टर 19 और 20, ओके 19 और 20 रह गया है. 20 के 22 पेज रह गए हैं. ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से. एक से मिल जाओ, चैप्टर 19 पे छोड़ रहे हैं. ठीक है, तो आज भी ये बुक कंप्लीट नहीं हुई, कल इसे कंप्लीट कर देंगे. कितना टाइम हो गया? 1 hour 23 minutes. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द नाइट गाइस. और सोने से पहले प्रे ज़रूर करना. जो आपको चाहिए वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से 5-6 बार मांगना, 3-4 मिनट मांगना, देन उसके बाद सोना, क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाना है. यही इस बुक का मतलब है. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. आई होप आज की नींद